To all of you. This is Pranjal Hadarika. You are watching Pranjal Education. So this is the next class of the series of Lucent General Knowledge. You can see on my screen. So we will start from here. Last class we ended the class because of some technical issue. So you can see archaeological finds Harappa. So sites of Harappa, the Sikh scenarios is now working floors, workmen's quarters, Virgin Gorges, Seal, Cemetery, R37H, stone symbols of Lingam, male sex organ, and Vioni, female sex organ, painted poetry, clay figure of Mother Goddess, fit and burly in wooden mortar copper scale, crucible for bronze copper made mirror, vanity box, dice. Those are available in Harappa now. The sixth generation is raw working floors. In Mohenjo-daro, great greenery, great bird, the largest building of civilization, assembly hall, sales strips, Puspati, Mahadev, Proto Shiv, seal bronze, image of nude woman, dancer, stilted image of bearded man, human skeletons, huddled together, painted seal, demigod, clay figures of mother goddess, a fragment of woman, cottage brick nails, two Mesopotamian seals, 1398 seals, 56% of total seals of civilization dies. Okay, so now is San Hordora city without the citadel. In pot, lipstick, metal workers, seal, ornament makers are available. Lothal, if you want to read all the important things, just pause the video and watch and read. So I want to go the next point. Okay, those are also important. In my exam, they ask the toy flag were available. Then you have to answer yes, Vanavali toy flag. Okay, so that kind of question in exam they ask port barrels were available. Surkotada in एग्जाम में ऐसा ही पूछ सकते हैं. ओके, सो ब्रॉन्ज इमेज कहाँ है वो भी पूछ सकते हैं, तो आपको तभी आंसर करना पड़ेगा. डैमाबाद, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैंने बोल दिया. आप चलते हैं नेक्स्ट, शुरू करते हैं. मोहनजोदारो द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन. तो इंडस सिविलाइजेशन के लार्जेस्ट साइट था. तो राखीगढ़ द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन. तो इंडस सिविलाइजेशन के राखीगढ़ सबसे बड़ा साइट था. ओके, कॉमन फीचर्स ऑफ मेजर सिटीज़. तो कुछ फीचर्स हैं मेजर सिटीज़ का, वो दिखाया जा रहा है इधर आपका. एक नंबर पे है सिंथेटिक टाउन प्लानिंग ऑन द लाइन ऑफ ग्रिड सिस्टम. सेकेंड इज यूज ऑफ बर्न ब्रिक्स in constructions. Third, underground drainage system, giant water reservoirs in Dholavira. Fourth is Fort Fate Citadel, exception सोना डारो. उसके बाद है सुरकोटन, कुछ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात पे है. दैट ओनली इंडो साइट वेयर द रिमेन्स ऑफ ए हॉर्स हैव एक्चुअली बीन फाउंड. घोड़ा की वो आ गया है इधर. ओनली वन है साइट इंडस सिविलाइजेशन के. उसका नाम है अभी, कुछ डिस्ट्रिक्ट गुजरात पे है. अभी से ऐसे जाना जाता है, पहले उसे सुरकोटारा जाना जाता था. ओके, तो मेन क्रॉप जो था उस टाइम के फीड, बर्ली, एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस इन लोथल एंड रंगपुर. लोथल रंगपुर पे एविडेंस भी पाया जाता है चावल की खेती होते थे उधर, तो वो सब गुजरात पे थे, अभी के गुजरात पे है. अदर क्रॉप्स जो होता है डेट्स, मस्टर्ड, सेसमम, कॉटन एक्सेट्रा. इन और भी कुछ होता था. ठीक है, तो एक्सेट्रा लिखा हुआ है. इंडियस पीपल वेर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड. जो भी आपका इंडस पीपल है उसने सबसे पहले कॉटन का प्रोडक्शन शुरू किया था पूरे वर्ल्ड में. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए. ठीक है, देख लिया आपने, पूरा का पूरा आप नोट डाउन कर लीजिएगा ये. ओके, उसके बाद एनिमल्स, sheep, goat, humped and humpyless bull, buffalo, boar, dog, cat, pig, rofo, deer, tortoise, elephant, camel, rhinoceros, tiger, etc. Lion was not known to Indus people. So lion तो शायद नहीं थे. From Amarai, a single. So next is there was extensive
inland and foreign trade. Foreign made with the Mesopotamia or Sumeria, modern Iraq, and Bahrain, etc. flourished. So those are imports and from. So गोल्ड है तो गोल्ड आपका इंपोर्ट हुआ था आपसे कोलार कर्नाटक अफगानिस्तान पेरिसिया ईरान इसमें हुआ था सिल्वर आपका अफगानिस्तान पेरिसिया ईरान साउथ इंडिया में हुआ था और आपका जो कॉपर है वो खेतरी अभी का राजस्थान थे और बलूचिस्तान तो वही पाकिस्तान पे है शायद अरबिया से हुआ था 3 अफगानिस्तान और बिहार से lapis lazuli and sphere Badakhshan Afghanistan Jed Central Asia Stalactite Sher I Sukta Iran Kritahar Hills Pakistan और MTS महाराष्ट्र से So export are agriculture products, cotton goods, terracotta, figurines, poetry, certain wickets from the Sondero, conceals from Lothal, ivory product, copper, etc. The very interesting feature of this civilization was that iron was not known to the people. Iron was मतलब उस टाइम पे आयरन वाज दे डोंट नो अबाउट द आयरन लोहे के बारे में उसे इतना नॉलेज नहीं था और द Sumerian text under the trade realization Melusa which was the name given to the Indus region Satughai and the Mundiga were the Indus sites found in Afghanistan ये अफगानिस्तान पे है ये दोनों साइट बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों साइट आप नोट डाउन कर लेना The Harappas were the earliest people to produce cotton. So हड़प्पा साइड का वो है पीपल से वो सबसे पहले कॉटन प्रोड्यूस किया था इट वॉज कॉल्ड सिंडोन बाय द ग्रीक ग्रीक में इसे सिंडोन कहा जाता था ओके उसके बाद है इंपॉर्टेंट लोथल वॉज एन एंशियंट पोर्ट ऑफ द सिविलाइजेशन एंशियंट पोर्ट था सिविलाइजेशन के लोथल ये हो गया सो उसके बाद है द इंडस सिविलाइजेशन वॉज प्राइमरली अर्बन इंडस सिविलाइजेशन अर्बन था वो नो क्लियर कट एविडेंस ऑफ द नेचर ऑफ पॉलिटी के बारे में कोई इतना डिटेल्स है नहीं बट इट सीम्स दैट द रूलिंग अथॉरिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वाज ए क्लास ऑफ मर्चेंट्स ओके The Harappa people did not worship their gods in temple. No temple, in fact, has been unearthed. An idea of their religion was formed from the statues and figure founds. हड़प्पा के जो पीपल थे वो गॉड को मतलब टेम्पल में वो नहीं करते थे The most commonly found figurine is that the mother goddess Maitra Devi or Shakti. There was evidence of the prevalence of yoni, female sex organ worship. Important है ये ठीक है शिव मेल डेटी was पशुपति महादेव ये हो गया आपका The Shiv Shakti worship, the oldest form of worship in India, appears to have been part of the religious belief of Harappa people. सबसे पुरानी है शिव शक्ति वर्शिप सबसे ओल्डेस्ट है इंडिया ये हड़प्पा के पीपल का पार्ट था ये बिलीव किया जाता है The remains and relief were revealed that the Jolatary animal worship and the free worship escape people were in vogue in those days. उसके बाद है आपका ये रहेगा एक इम्पोर्टेंट कालीवंगा from was from Kalivanga so that rating was both strophers or from right and left right to left from left to right in alternate lines okay the satellite was mainly used in manufacturing of shells manufacturing का satellite use किया जाता था Humpless bulls is represented in the most of the industrials में Humpless bull किया जाता था The origin of the swastika ये हो गया important swastika symbol can be traced to the Indus civilization Indra is
accused of causing the decline of Indus civilization, M. Wheeler. ये एक हो गया. Rigved speak of a battle place named हरियम्पिया. तो ऋग्वेद कहता है जो हरियम्पा नाम के एक युद्ध हुआ था which has been identified with हड़प्पा. हड़प्पा में उसका चिन्ह पाया गया है. कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, ये हो गया आपका मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना. ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. सो उसके बाद आएगा आपका वैदिक कल्चर. वैदिक कल्चर का टाइम पीरियड था आपके 1500 BC से 600 BC तक. ये था वैदिक पीरियड का टाइम का. नोट डाउन कर लिए सबसे पहले. ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यन. हाइड्रस लोगों के जो ओरिजिनल होम था वो क्या था? द लोकेशन ऑफ द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यन स्टिल रिमेन्ड ए कंट्रोवर्शियल पॉइंट. अभी भी शायद इसका मतलब वो मिला नहीं है. सम स्कॉलर बिलीव दैट द आर्यन्स वर नेटिव ऑफ द सोइल ऑफ इंडिया एंड सम ऑफ अदर स्कॉलर्स बिलीव दैट द आर्यन्स वर द माइग्रेटेड फ्रॉम आउटसाइड सेंट्रल एशिया. मैक्स मुलर कहते हैं यूरोप, आर्कटिक एंड रीजन विजिट लव. तो आर्यन जो है उसका कोई अभी सटीक वो मिला नहीं है कहाँ से आए हैं. फिर भी कुछ लोग कहते हैं आर्य आपका आउटसाइड इंडिया मतलब सेंट्रल एशिया से आया हुआ है, वो मैक्स मुलर कहते हैं. यूरोप, आर्कटिक रीजन से आया हुआ है, वो विजिट लव कहता है. According to the popular belief, the Aryans were supposed to have migrated from Central Asia. तो सेंट्रल एशिया के बारे में भी कहा गया है. into the Indian subcontinent in several stages of waves during the 200 BC to 500 BC. इसके समय पे आया था इसे during. The Bogazaki inscription, Asia Minor Turkey, which mentioned the four Vedic goddesses Indra, Varuna, Mitra, and Nasatias, prove the Central Asian theory of their homeland. तो इसने भी बताया है ये भी सही है. तो नेक्स्ट इधर आपका इम्पोर्टेंट है एक the ground of Indian first settled in present frontier provinces and the Punjab, then called Supta-Sindhu region of seven rivers. सेवन रिवर्स होने के कारण सप्ता सिंधु कहा जाता था उस टाइम पे. अभी वो है पंजाब में है फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड पंजाब, फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड पंजाब में था. नाउ वी स्टार्ट वैदिक लिटरेचर. सो वैदिक लिटरेचर जो था आपके उसका टाइम पीरियड दिया गया है 1500 BC से 600 BC तक है ये. सो it is presumed the big Rigveda was composed while the Aryans were still in the Punjab. Vedic literature comprised of four literary productions: the Samhitas और वेदास. संहितास को वेदास भी कहा जाता है. द ब्राह्मण्स, द आर्यांकस, द उपनिषद्स. ये सार लिटरेचर का प्रोडक्शन कहा जाता है वैदिक लिटरेचर को. बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, नोट कर लीजिएगा. द वैदिक लिटरेचर हैड ग्रोन अप इन कोर्स ऑफ टाइम एंड वाज रियली हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ. हिंस दिस आर कॉल्ड श्रुति. तो सुना जाता है, मुँह से बोलने के बाद उसे श्रुति कहा जाता है. उसके जरिए जनरेशन टू जनरेशन फॉल हुआ था, हैंडेड डाउन हुआ था, तो इसे कहा जाता है श्रुति. ये आपका हो गया आपका, ठीक है. तो उसके बाद है आपके द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ वैदिक लिटरेचर. वैदिक लिटरेचर का मोस्ट इम्पोर्टेंट है वेदस. वेदस आर कॉल्ड Apu Rasriya, not created by the man but God gifted, Nitya, existing in all elementary. कहा जाता है कि मनुष्य ने नहीं बना, ये गॉड के जरिए दिया गया है. देयर आर फोर वेदस. वेद कितने हैं? 4 प्रकार के हैं. इसमें जो है आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. ये 4 वेद हैं. दिस फर्स्ट 3 वेदस जॉइंटली कॉल्ड द वेदात्रय. जो आपके फर्स्ट 3 वेद है, इस तीनों वेद को एक साथ करके वेदात्रय कहा जाता है. ट्रायो ऑफ वेदस.
कहा जाता है इसे, ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद। आउट ऑफ 4 वेदास, ऋग्वेद कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, लिरिक्स होता है, लिरिक्स के कलेक्शन है ऋग्वेद, द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, and therefore is also known as the first testament of mankind. The ऋग्वेद contain 102 वेद, 1028 उसमें, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपका इम्पोर्टेंट, 1028 श्लोक है इधर। उसके बाद डिवाइडेड इंटू 10 मंडल्स, 6 मंडल्स फ्रॉम सेकेंड, एंड मंडल्स आर कॉल्ड गोत्रा, गोत्रा कहा जाता है मंडल्स को। पश्चिमा मंडल्स को कुला ग्रंथ कहा जाता है। तो फर्स्ट एंड 10th मंडल्स आर सेड टू हैव बीन एडेड लेटर, 10वां और पहला ये बाद में ऐड किया गया था, कहा जाता है। द 10th मंडल्स कंटेन द फेमस पुरुषाकुता, which explain the 4 varnas, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। क्षुद्र कहा जाता है इसे एक्चुअली, ठीक है, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। द Hymns and Rigveda were created by Hotri. सामवेद एक्चुअली देख सकते हैं, सामवेद जो है बुक ऑफ सन्स एट द 1549 1549 श्लोक इसमें है आपके। ऑल hymns एक्सक्लूडिंग 75 वर टेकन फ्रॉम द ऋग्वेद। 75 को अगर छोड़ दें हम, बाकी सब बोला गया है कि ऋग्वेद से लिया गया है। The segments of the same Samveda were created by Udgatra. This Veda is important for Indian music. ये इंडियन म्यूजिक के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है यजुर्वेद, बुक ऑफ सेक्रीफाइशल प्रेयर्स, सेक्रीफाइस पार्टन ऑफ अ प्रेयर के लिए इसे माना जाता है। इज ए रिचुअल वेद, hymns were created by the Advaris. श्लोक जो है वो अडवा रायुष द्वारा लिखा गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कृष्ण यजुर वेदा एंड श्लोक यजुर्वेदा। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट 2 which are in Pharisee entirely, this one is in both verse and prose. अथर्व वेदा, बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला, मैजिक होता है, मैजिकल फॉर्मूला से लिया गया है। फोर्थ एंड द लास्ट वन contains psalms and spells to word of evils and diseases. For a long time it was not included in the category of Vedas. बहुत टाइम तक इसे मतलब वेदों की कैटेगरी में इंक्लूड किया नहीं गया था। और अथर्ववेद मोस्टली मैजिकल फॉर्मूला के लिए वो याद किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो ब्राह्मण्स द hymns of the Vedas explain the वेद का श्लोक है, दे आर राइटन इन प्रोज एंड रिचुअलिस्टिक इन नेचर। तो कविता के माध्यम से लिखा गया था। ब्रह्म मीन्स द सेक्रीफाइस, द वेरियस सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स हैव बीन elaborately discussed in the Brahmans. Every Veda has several Brahmans attached to it. So कुछ लिखा गया है ब्राह्मण्स के नाम। तो ऋग्वेदा के संपर्क में थे अत्यरी एंड खुशी टिकिल, सानिक कवि कहते हैं इसे। सामवेद में था पंचविशा, टेंड्य महाब्रह्मणा, सदवेश, संडोग्या एंड जेमिनिया। यजुर्वेद सप्तपाठ, द ओल्डेस्ट लार्जेस्ट ब्राह्मण, सबसे पुराने और लार्जेस्ट वो ब्राह्मण था ये सप्तपथ, ठीक है। एंड तट्यात्री ये था उसमें। अथर्ववेद में था आपका गोपठ, ठीक है। ये हो गया आपका इम्पोर्टेंस जो है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज हिट द बेल आइकन टू गेट their notification. Please subscribe.
This series is very helpful for all the aspirants those are preparing any government exams. Also, this one is very informative for all the students those are studying now in class 9, 10, or other classes. So thank you so much to all.